So, friends, this particular session is for the GD group discussion session, and I'll be giving you a topic, and then you can start discussion on that. So, let me share first the topic with you. Little brief I'll give you. I think it is visible to you now. So, it is related to gig economy. तो सबसे पहले समझो गिग इकोनॉमी होता क्या है. Gig economy is basically the economy in which it is a short term contractual or a freelancing job. परमानेंट जॉब नहीं होता ये फ्रीलांसिंग होता है. दिस इज अ गिग इकोनॉमी. And whatever we know as a job is like full time employment, but it is not a full time employment. And it can be beneficial to the worker in some way, like it may give flexibility or control on their schedule or higher earning opportunities. Uh, Even to the organizations, it is good. Sometimes they don't want to keep the full time employee. So there are some kind of arguments in favor of gig economy, like as the technology advancement is going. So if you're expert in your work, you prefer to be working in freelancing mode. Sometime younger generation prioritize, they have they want flexibility in their work time or work life balance. It helps them to make work life balance, especially when one of the partners or spouse is actually also engaged in work. So as the work is becoming highly specialized, there are requirements of such gig economies or such kind of work profile. So we have seen post COVID, this gig economy is coming in a big way. In the post COVID, I mean, lot of people are preferring to do freelancing jobs. But then there are arguments which are against it also, like job insecurity. You are not full time employee, so there's a job insecurity. Income also is not consistently coming every month. Protection is not there of gig economy workers, and it is not suitable for all the professions. For some profession it may be suitable, but not for all the profession. So likely scenario can be like hybrid model, focus on the skill which you have to do. Some kind of policy change, government is to make some policy to take care of the security of these gig workers. So these are some of the points related to gig economy, friends. I'll give you a couple of minutes to go through this topic which I've given you, and then we can start the discussion. So I gave you these points just to make sure that you people are not sitting without points, so that our main purpose is practice for the group discussion, for which your lack of knowledge should not be barrier. So give yourself a couple of minutes, see this topic, this particular content, and then we can start the discussion.
Okay, friends, so you've gone through it. Yes, sir. Okay, so try to be visible and unmute yourself and start the discussion now. हेलो। मेरा नाम शशांक अग्रवाल है। मैं गिग इकोनॉमी जो हमें टॉपिक दिया गया है, क्या यह फ्यूचर ऑफ वर्क है या नहीं, इस पर डिस्कशन में स्टार्ट करना चाहूँगा। गिग इकोनॉमी से हमें यह मतलब समझ में आता है कि गिग इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो एक ट्रांजिएंट नेचर की है। इसमें कोई स्टेडीनेस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो है ये आपकी परमानेंट पोस्ट है। दिस इज अ काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय है, कोई जोमेटो वर्कर है, एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, यदि आप अमेजोन से लेते हैं, फ्लिपकार्ट से लेते हैं, जो भी पर्सन आते हैं, वो सब एक तरह से गिग इकोनॉमी एंड गिग वर्कर्स हैं, जिनकी जॉब का कोई स्टडीनेस नहीं होता, ये ट्रांजिएंट नेचर की होती है। इस तरह की इकोनॉमी जरूरी भी है, क्योंकि मान लीजिए कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, बहुत लगन से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी उतनी नहीं है जिससे मेरा घर चल सके। तो उस कंडीशन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गिग इकोनॉमी पर बेस्ड होना पड़ेगा। तो उस इस कंडीशन पे मैं जो है गिग इकोनॉमी, मान लीजिए मैं फ्लिपकार्ट पे काम करना स्टार्ट करूंगा और पैसा अर्न करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इसमें यह होता है कि आपको कोई पीएफ नहीं दिया जाता, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं दिया जाता, किसी तरह का मेडिकल बेनिफिट्स नहीं दिया जाता। तो ये सब चिंता का विषय है गिग इकोनॉमी में, बिकॉज यदि आप किसी कंपनी के लिए इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं तो आपको मेडिकल बेनिफिट्स कुछ दिया जाना चाहिए, कुछ पीएफ दिया जाना चाहिए, कुछ ग्रेचुटी दिया जाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ दिया नहीं, कंपनी हमें देती नहीं है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा, क्योंकि गिग इकोनॉमी क्या है कि कोई एक परमानेंट पोस्ट नहीं है। इसमें आपको कोई फुल टाइम सर्विस नहीं करनी होती है। इसलिए जो कंपनीज है जो हमें गिग इकोनॉमी देती हैं, गिग पोस्ट देती हैं, वो भी कहीं हद तक मजबूर है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि गिग इकोनॉमी में हमें मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को कुछ हद तक कुछ लिमिटेशंस, कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए ताकि वो जो भी गिग वर्कर्स है उनको कुछ प्रोटेक्शन दे। कहीं कुछ न कुछ तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल बेनिफिट तो देनी चाहिए। मान लीजिए कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय है, वो आपका पिज्जा सर्व करने आता है। मान लीजिए किसी कारणवश उसको उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई माइनर इंजरी आ गई, तो मान लीजिए तो वो तो 200 रुपया पर 500 रुपये का पिज्जा डिलीवर करने आया है, लेकिन उसको कोई इंजरी हो गई, तो उसकी सर्विस उसका खर्चा कौन उठाएगा? उसका खर्चा डोमिनोज को ही उठाना चाहिए, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है। सो गिग इकोनॉमी फ्यूचर है किसी भी कंट्री का। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके। यही मेरा तर्क है। इसलिए टॉपिक में आगे आपको सर हैंड ओवर करता हूँ और लोगों को। हेलो। जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? मान लीजिए गिग इकोनॉमी पर हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आप 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन आपके पास काफी नॉलेज है, आपके पास काम करने का जज्बा है, तो भी आप क्या है कि किसी न किसी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो आप 60 साल के बाद भी मान लीजिए आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी जॉब या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, बट इन द गिग इकोनॉमी, इन द गिग फील्ड्स, यू कैन इजिली गेट अ जॉब बाय डूइंग एनीथिंग विच यू अर्न अर्लियर। तो गिग इकोनॉमी हर देश का फ्यूचर है और ये लगातार बढ़ता ही रहेगा। लेकिन कुछ जो उनके वर्कर्स है, जो उनके एम्प्लॉयज है, उनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार को कुछ ना कुछ आवश्यक कदम अवश्य उठाने चाहिए। हेलो। आई मैं क्या मैं सुन पा रहा हूँ सबको? जी आकांक्षा जी, आप बोलिए। Please participate, each one of you. I agree completely with Shashank, but I also believe that the quality of work will decrease if we promote gig economy, because we know that with experiences come skills. For menial tasks, maybe it's possible, but for
For actually big significant tasks, we need people with great experience who have worked there for 10 to 20 years. जी। शशांक की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जो गिग इकोनॉमी फ्लेक्सिबल काम करने के लिए जो आज की गवर्नमेंट जो मान लो किसी को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रख रही है या किसी भी तरह का अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, पार्ट टाइम जॉब करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो अपना जो टाइम का यूटिलाइजेशन है पूरी तरह से कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे। तो गिग इकोनॉमी कहीं ना कहीं देश की उत्पादकता के लिए भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। और पर्सनल लेवल पे भी अपने हिसाब से अपना जो टाइम है इंटरवल है अलग टाइप के काम कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहने से हमारा स्ट्रेस भी रिलीज होता है। ये कुछ एडवांटेज हैं गिग इकोनॉमी के। लेकिन इसके साथ ही कुछ सोशल सिक्योरिटी टाइप की जो जैसे पीएफ बोला गया है शशांक ने, वो नहीं है इसमें, तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसका कि कोई मेडिकल इंश्योरेंस टाइप का नहीं है इसमें, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है इसके लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ फायदे भी हैं इसके, कुछ हमारे लिए पर्सनल लेवल पे नुकसान भी हैं जो वर्कर इसमें काम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मतलब एक अच्छा मतलब एक प्रोडक्टिव नेचर ऑफ वर्क है जिसमें सभी लोग पर्सनल लेवल पे भी मान लो एक आप कोई परमानेंट जॉब भी कर रहे हैं इसके साथ ही अगर कोई दूसरा काम भी पकड़ ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपके लिए भी है कि टेंशन रिलीज होगा आपका। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आपका जो जॉब सिक्योरिटी वगैरह है जैसे, तो वो नहीं है इसमें। और साथ में ही ये भी है कि आपका जो मतलब पॉलिसी है, मान लो आपका एथिकल पॉलिसी है, मान लो कि कंपनी में जॉब कर रहे हैं दूसरी जगह भी जॉब कर रहे हैं, तो कुछ इसकी इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी है उसका भी लैप्स होने का जो खतरा है वो बना रहता है इसमें। तो इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ कि कुछ खतरे के साथ कुछ अच्छे एडवांटेज भी हैं। गिगी गिगी इकोनॉमिक्स उन लोगों के लिए अच्छा है जो मतलब जो अपना तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, जो जिनका फिजिकली फाइनेंशियल कंडीशन घर का अच्छा नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपना जॉब की तैयारी भी करते हैं और पार्ट टाइम में गिग इकोनॉमिक लाइक फ्री मार्केटिंग सिस्टम वाली जॉब कर सकते हैं जो टेम्परेरी बेस पे होती हैं। मतलब आवर के टाइम पे क्वेश्चन मिलता है, जैसे अभी ये इंजीनियरिंग फील्ड के काफ़ी बच्चे चेक 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 है एक, उसमें क्या क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उस पर आंसर देना है आपको, तो पर क्वेश्चन के हिसाब से पैसे उनको मिलते हैं। तो एज अ पार्ट टाइम देखें तो आप गिग इकोनॉमिक्स का ये काफ़ी अच्छा रहता है कि उनको पैसे भी मिलते हैं और अपना जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम अपना पढ़ाई भी करते हैं, तो उनसे उनको बेनिफिट मिलता है, वो घर से कोई पैसा लेना नहीं चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये इसका फ़ायदा है गिग इकोनॉमिक्स का। और जहाँ तक कि हमारे फ्रेंड्स बताएं संदीप की ये थोड़ा इसका जो प्राइवेसी है कि थोड़ा ये ऑथेंटिक नहीं होता है चीज़ें, वो चीज़ें हैं, लेकिन एज अगर आप फाइनेंशियली कमज़ोर हैं घर से तो आप ये कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, इसका ऐसा है। देखिए, गिग इकोनॉमी का रोल तब आता है मेरे विचार से, बिकॉज ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आप यदि 8 आवर्स वर्किंग पर्सन है, या फिर आप एक 60 साल के बाद यदि आप रिटायर हो जाता है, ये और सुपरन्यूएशन इज हैविंग टेकिंग प्लेस, तो मान लीजिए कि आपका रिटायरमेंट हो गया है, लेकिन उसके बाद आपके पास यू हैव डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप बहुत ही छोटा छोटा काम, जो गिग इकोनॉमी क्या है, बहुत ही छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कार्य नहीं होता है, ये बहुत ही छोटे छोटे कामों का एक यूनियन होता है ना। तो आप गिग इकोनॉमी में क्या है कि आप 2 घंटे या 4 घंटे काम करके भी जो अपने मंथली एक्सपेंसेस आप निकाल सकते हो। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। जैसे आप पिज्जा डिलीवरी बॉय ले लीजिए, आप एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज ले लीजिए, है ना। तो उसमें क्या है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको जो बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर काम नहीं करना है। प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं प्रेशर होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको इस बात का डर रहेगा कि आपकी जॉब कहीं चली तो नहीं जाएगी, बिकॉज इस जॉब में खासियत ये भी एक मान लीजिए जॉब जाती है तो यू कैन टेक अदर जॉब आल्सो वेरी इजिली, बिकॉज इस जॉब का नेचर ही ऐसा है कि यदि मान लीजिए आपके पास ट्रांजिएंट नेचर ऑफ वर्क है, यदि आपकी कंपनी के एक्सपेक्टेशन पर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं,
तो हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, बट ड्यू टू योर जॉब एक्सपीरियंस आपको दूसरी जॉब मिल पाएगी, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है उसका। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि आपकी जॉब को जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा जब तक आप, यदि आपने कंपनी को सही आउटपुट नहीं दिया जिस जो कंपनी ने आपसे एक्सपेक्ट किया था, तो इसका डिसएडवांटेज ये जरूर है। और जो आपका सोशल एक्चुअली सिक्योरिटी। मैं इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ, इसका कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि गिग इकोनॉमी नाम से आपको लग रहा है कि ये कोई परमानेंट जॉब है नहीं, ये तो टेम्पररी जॉब है। तो कभी भी हाँ आपको जहाँ पैसा आपको अच्छा मिल रहा है, कम टाइम में आपको हाँ। पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इसका जी इससे बिल्कुल। इससे रिलेटेड नहीं है कि परमानेंट है कि नॉन परमानेंट है। इसका आपको ये है कि अगर उसी टाइम को अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है कम टाइम में, तो वो हम कर सकते हैं। इसका जी कोई इससे बिल्कुल। रिलेटेड नहीं है ये। गवर्नमेंट का जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, इसको इसको भी सपोर्ट मिलेगा इससे। कि एक्चुअल में क्या है, गवर्नमेंट बोला भी है कि गवर्नमेंट का काम नहीं है कि कंपनी को चलाना। एक्चुअल में धीरे धीरे जो जैसे अमेरिका का जो है कि लोग ही उसको अपने तरीके से हैंडल कर, जैसे कुछ साइज की अपनी पीएसयू टाइप की जो कंपनी है, गवर्नमेंट चाह रही है इसको धीरे धीरे हैंड ओवर करके पूरा प्राइवेटाइजेशन की टाइप ले जाने का। एक कदम ये भी है कि लोग अपने स्तर से उसको संभालें। इससे क्या है, सभी लोगों का अपना स्किल डेवलप करेंगे, अपने माइंड पे स्ट्रेस लेंगे, हम्म। हमें क्या स्किल डेवलप, सोसाइटी की क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे, उस टाइप का अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, ताकि लोगों की उत्पादकता, जरूरत, सोसाइटी की जरूरत के हिसाब से अपना डेवलप करें। तो ये जी मतलब एक संदीप जी प्रकार से आपने बड़ा बिल्कुल। अच्छा है उसमें। ये जी मैं एक संदीप जी पॉइंट आपने यहाँ पे और बिल्कुल ऐड सही कर कहा, बिकॉज यहाँ। हमारे जो हमारा अभी बजट आया था 2024-25 का, जो निर्मला सीतारमन जी ने जो अभी बजट पेश किया गया है, उसमें स्किल डेवलपमेंट पर सरकार जो है लगभग आई थिंक 1,000 करोड़ रुपीज खर्च कर रही है, ताकि स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। और लगभग 1 करोड़ युवाओं को स्किल हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जिसे हम बोलते हैं एनएसडीसी के थ्रू स्किल प्रोवाइड कर रही है सरकार, ताकि हमारे युवाओं को कुछ स्किल मिले, ताकि वो कुछ लोग खुद अपने आप बिजनेस से कुछ चला सकें, कार्य कर सके। नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकरी मांगने हाँ वाले। ये मतलब जी माइंड बिल्कुल, से वो परसेप्शन। एंटरप्रेन्योर बने। हाँ, जी माइंड से ये क्या बैठ हाँ। गया कि मुझे वो नौकरी खुद ही चाहिए, खुद इस टाइप से मतलब अपने आप को डेवलप करने का जी सोच ही नहीं वो रहता उस डायरेक्शन में कि हम अपना भी कुछ स्टार्ट हाँ कर सकते हैं। मान लो सोसाइटी में किस झाड़ू जी जी पोछा वाले जी की जरूरत है, उस लोगों को रखना चाहिए और उनको ट्रेंड करो, झाड़ी पोछा हाँ उनको अवेलेबल करो, सोसाइटी को क्या जरूरत है अपने आसपास देखो, उस टाइप से अपने आप को डेवलप करो। वो मुझे लग ये रहा है। हमारी इसमें सरकार। ऑर्गेन इसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है, जैसे कि जिस टाइप का वो काम उन्हें चाहिए उस टाइप के फ्रीलांस वर्कर को हायर कर सकते हैं। और जब उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, दे कैन गेट अदर पीपल फॉर सर्टेन अदर जॉब्स। एंड इसमें उनका भी फायदा है, क्योंकि उनको मॉनेटरी असेसमेंट लाइक पीएफ फंड्स एंड सीएसआर, उनमें उतना खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे कैन टेक टेंडर्स, हाँ डिफरेंट टेंडर्स फ्रॉम द फ्रीलांस वर्कर्स। इसकी जो डिसएडवांटेज है लेकिन पे थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे अभी अभी तक जो परमानेंट जॉब टाइप का जो सिनेरियो चला आ रहा है कि मतलब जो गवर्नमेंट जॉब रहती है उसमें आपका पीएफ, ग्रेजुएटी, पेंशन, ये सब उसमें रहता था। तो लोग मतलब एक बार फ्यूचर को ज़्यादा टेंशन में ना रखते हुए अपने आप को फुल ग्रोथ करने के लिए पूरी तरह से पोटेंशियल लगाते थे कोई उनको जो काम दिया जाता था। तो इस रिस्पेक्ट में थोड़ा सा मतलब डिफिशियंसी रहेगी इस गिग इकोनॉमी में, क्योंकि लोग थोड़ा फ्यूचर के एस्पेक्ट रहेगी, थोड़ा हमेशा एक उनके माइंड में टेंशन रहेगी कि भाई हमारा फ्यूचर क्या है। मान लो कल के दिन हमारे साथ कोई घटना घट गई तो क्या है मेरे पास, क्या उसके साथ हमारे बच्चों की देखभाल के लिए, हमारे परिवार की देखभाल के लिए क्या हमारे साथ कोई आर्थिक रूप से हेल्प है, हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ, इस टाइप के कुछ मतलब मेजर इसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्योंकि यदि कोई कोई यदि हमारे लिए कोई सपोर्ट के लिए मतलब जिस टाइप से जो पॉलिसी थी पहले पीएफ और मेडिकल वगैरह की, तो उससे क्या रहता था, लोग निश्चिंत होकर अपना जो जॉब में फुल टाइम देते थे और वो अपने आप का ग्रोथ ही फुल पोटेंशियल से करते थे। तो गहराई से पहुंचने के लिए किसी एक वर्क में अपना फुल एनर्जी भी डालते थे। तो उससे क्या किसी एक काम में स्पेशलाइजेशन, गहराई पकड़ने, मतलब कोई भी रिसर्च वाला क्षेत्र, कोई इसका डिसएडवांटेज तक जहाँ एक ही तक काम में लगे रहना पड़ता है। तो उस रिस्पेक्ट में मुझे लग रहा है ये गिग इकोनॉमी ज़्यादा सही नहीं है। हालांकि ये है कि पैसे कमाने के पर्पज से देखेंगे तो ठीक है, आप बदल बदल के अलग अलग जगह जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा आप काम हाँ अपना करके अलग अलग स्किल डेवलप कर सकते हैं। लेकिन किसी एक फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन, गहराई पकड़ना चाहें तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये उस क्षेत्र के लिए सही इसका नहीं। जहाँ इसका तक मैं एक इसका एक पॉइंट ऐड करना चाहता एग्जाम्पल। हूँ संदीप जी का, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे संदीप जी बता रहे हैं कि
अगर हम ये करते हैं तो हमारे फैमिली के लिए एक परमानेंट जॉब की तरह नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि हमको हर मंथ पैसा मिलेगा ही, अगले साल या उसके अगले साल पैसा मिलेगा। इस जॉब में, गिग इकोनॉमी में ऐसा भी हो सकता है कि हमें अगले साल हमारे पास जॉब रहे या ना रहे। तो इसके डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका स्टेबिलिटी है, जॉब स्टेबिलिटी। मैं जॉब पूर्ण स्टेबिलिटी। सहमत हूँ 700 चीज से। ये गिग इकोनॉमी मेन प्रॉब्लम है कि ये रिलायबल सोर्स नहीं है। तो यह पता चला आज किसी पर्सन के पास बहुत सारा वर्क रहा हो, पर ये जरूरी नहीं कि वो वर्क हमेशा उसके साथ चले, और अगले दिन उसके पास बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ही वर्क ना हो, ये भी सिचुएशन आ सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिलायबल नहीं है। अब देखिए, गिग इकोनॉमी के एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। मान लीजिए जैसे आप पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक्टर के लिए यूएस, लंदन ऐसी कंट्रीज में जाते हो, तो आपने अक्सर सुना होगा कि यूथ क्या है कि अपने पढ़ाई के बाद कुछ वक्त क्या है, कुछ रेस्टोरेंट में काम कर लेते हैं, कुछ 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 मतलब 2 से 3 आवर्स काम करके कम से कम अपना लाइवलीहुड के लिए खर्च निकाल लेते हैं। तो वहां पर गिग इकोनॉमी का रोल, हमें उसका जो इम्पोर्टेंस है गिग इकोनॉमी को, वो हमें वहां पर हमें मालूम चलता है। बिकॉज आप पढ़ाई भी कर रहे हो, कम से कम उतना एक्सपेंस आप देख शशांक जी, ये बात हमने कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं, ये आप फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं। ये चीज़ हम डिस्कशन हो चुका है ये। तो आप कुछ अलग पॉइंट बताइए। ये तो बात हमने कर लिया है, संदीप जी भी इस बात पे बोले हैं, हमने भी बोला है। हम्म, गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्ट में देखें तो क्या इसके एडवांटेज हैं, मतलब गवर्नमेंट को क्या फायदा, हमारे देश को ओवरऑल क्या फायदा है इससे। तो सिर्फ से इस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है काफी ज्यादा है, वो काफ़ी तो कम वो होगा, डिक्रीज होगा। और स्किल्स हाँ। थोड़े बढ़ेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम होगा। ये दो फैक्ट अच्छे हैं, और एडवांटेज है। और लोगों का क्या है एक्चुअली ना, इकोनॉमी सोचने में का मुझे नजरिया लगता चेंज होगा। एक्चुअली क्या, है 10 10 15 15 साल एक तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए लगा देते हैं लोग, अपना जो अपना अच्छा, यंग गिग एज डिपेंडेंसी आ काफी जाएगी टाइम लोगों उसमें में। वेस्ट कर देते हैं मेरे हिसाब से तैयारी के लिए। ये ज्यादा सही नहीं है। उस टाइम पीरियड में उतने जो हम मनी उसमें लगाते हैं, यदि उसका कुछ धंधा पानी स्टार्ट किया जाए, उससे काफी हमारा स्किल भी डेवलप होगा, कुछ नई सोच भी आएगी। हमारा जो यूथ है वो डिपेंडेंट हो जाएगा, साथ में पढ़ाई भी करेगा और यस। पार्ट टाइम जॉब करेगा। लाइक फॉरेन कंट्रीज में हम क्या देखते हैं, फॉरेन कंट्रीज में हम देखते हैं 15 साल के बाद ही मम्मी हम्म, पापा पेरेंट्स छोड़ देते हैं बच्चों को कि अपना जॉब करो और फिर अपना हायर स्टडी करो। तो वो हम्म, उस टाइप का एनवायरनमेंट यहाँ इंडिया में बन रहा है। तो ऐसे, जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया कि अभी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए निर्मला सीतारमन रमन ने बहुत से 1 2 प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। हाँ। तो उसके उससे काफ़ी हमको फ़ायदा मिल रहा है। हमारे यूथ को काफ़ी फ़ायदा इससे मिलेगा। जहाँ तक इसका स्टेबिलिटी और की एक बात, तो फायदा है जॉब कि स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन फ़ायदा यूथ को हाँ। मिलेगा। इसका अच्छा, और एक फायदा है कि गिग ये हमें एक साइड वे, एक ऑल्टरनेट वे ऑफ अर्निंग देता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से हम एक ऑल्टरनेट वे से अपनी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे लिए हमारी फैमिली का बर्डन कम घट सकता है। देखिए देखिए, गिग इकोनॉमी का इनडायरेक्टली मतलब ये भी है कि हम लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर जाते जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, ये तो सीधी सीधी बात है। प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना ही आपका कम होता जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ जो है उसका कंट्रोल मेजर्स, अपना जो एक्शन है उनके लिए लेना पड़ेगा, ताकि कुछ जो स्मॉल स्मॉल मेजर्स हैं, ताकि जो उनके सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, वो तो थोड़ा मुझे लगता है कि लेना चाहिए। सीधी अच्छी से बात है। बिकॉज क्या, यदि आपकी स्किल नहीं रहेगी तो आप गिग इकोनॉमी मीन्स प्राइवेटाइजेशन की ओर आप नहीं जा पाओगे। जितना भी वक्त आप तैयारी में लगाते हो या फिर किसी और चीज में लगाते हो, तो आपका जो क्वालिटी ऑफ टाइम है आपका अर्निंग में जाएगा। प्राइवेटाइजेशन में जो आपकी अच्छी अच्छी आपकी एमएनसीज कंपनियां हैं, जैसे हम बात करें एबीबी है, सीमेंस है, और भी बिग इंडस्ट्रीज हैं, यदि वहां पे आप काम करते हो, यू अर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स। तो वहां पर आप काम करते करते आप गिग इकोनॉमी का भी पार्ट हो जाते हो, आप स्किल भी डेवलप कर लेते हो। ओवरऑल आपका थ्रू आउट आपका पर्सनालिटी एनहांसमेंट होता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंट को अपने मेजर्स रखने चाहिए, ताकि हमारे जो सोशल सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसको वो भी हमें उससे हम बच सकें। उनको एक बेसिक अग्रीमेंट के लिए लॉ बनाना चाहिए, ताकि हाँ। वो तो एम्प्लॉयर और जो आपका गिग इकोनॉमी के फ्रीलांसर्स हैं वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट में आ सके, ताकि उनको थोड़ा सेफ्टी अच्छा, मिल सके जैसे इन टर्म्स ऑफ वर्क एनवायरनमेंट।
जी, इसका एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जिस तरह देखिए, हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जब आया, उसमें ये कहा गया था कि अब प्राइवेट सेक्टर भी जनरेशन कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन उसके पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज ही जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती थी। अब लेकिन जब देखिए प्राइवेट सेक्टर जब आया, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर क्या है, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। अब इंडिया गवर्नमेंट भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रही है। अब अडानी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहा है। अब स्टेलाइट कंपनी भी जनरेशन कर रही है। इससे क्या हुआ, हमारे जो कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर को फायदा हुआ। क्योंकि यदि हमारे पास मल्टी सेलर और बायर, कई सारे बायर हैं, कई सारे सेलर हैं, ये दोनों यदि होंगे तो एंड कंज्यूमर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो तो काम मुझे, की बिल्डिंग हुई है तो थोड़ा बिजली के जो रेट है उसमें भी हाँ, कमी आ गई है, तो लोगों जी को जी फायदा जी, ही यही हुआ मैं कहना है। चाह रहा हूँ। क्योंकि जब तक मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, तब तक एंड कंज्यूमर को फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं अपनी बात को यह कहना चाहूंगा कि गिग इकोनॉमी बिल्कुल फ्यूचर फ्यूचर है भारत का, और पूरे वर्ल्ड वाइड फ्यूचर है हमारी इकोनॉमी का। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट को कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए, ताकि वो अपने रिस्ट्रिक्शन क्यों रखनी चाहिए, अपने नागरिकों की भलाई के लिए, ताकि उनका कोई शोषण ना हो, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए कि अगर वो बहुत ज्यादा खुद को उलझा लिया बहुत सारे जॉब्स में, तो हाँ, उसका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। और इनफैक्ट आई थिंक इट कैन इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जो जॉब दो लोग करते थे वो एक सिंगल इंसान कर रहा है, तो कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा। ये एक तरह देखने का तरीका है। जी, हाँ, बिल्कुल सही थोड़ा कहा आपने। तो इंडिविजुअल आपका स्तर पर देखा जाए तो लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यदि आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, अपने परिवार को टाइम नहीं देंगे, तो थोड़ा सा सोशल दिक्कत भी बनेगा। क्योंकि आप एकदम यदि पैसों के लिए यदि जॉब के पीछे भागते रहेंगे तो आप अपने लिए टाइम कैसे देंगे? क्योंकि एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल का है कि 8 आवर घंटा कीजिए। किसी ने बोला है कि यदि आप अपने लिए 60% से ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप एज स्लेव, मतलब गुलामी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो वो भी थोड़ा देखिए, सा। जैसे आप लोगों ने बोला, तो मैं गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना चाहिए। तो मुझे एक एग्जांपल इसमें ये समझ में आ रहा है कि उसमें कुछ वर्किंग आवर गवर्नमेंट को कुछ ऐसा मेजर लेना चाहिए कि फिक्स हो। ऐसा नहीं कि आप 12 घंटे उसमें आपसे काम करवाया जाए, आपको वीकली में एक ही दिन या फिर 2 दिन लीव दिया जाए। ये सभी गवर्नमेंट के मेजर्स में आ जाना चाहिए, आई थिंक सो। बिकॉज यदि बिल्कुल ही उनके पास फ्री हैंड होगा, तो आप बिल्कुल, जैसे हम बोलते नहीं कि 12 घंटे 14 घंटे काम करे, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल है ही नहीं। तो गवर्नमेंट शुड हैव सम काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर्स इन इन फेवर ऑफ यू। ओके। हाँ, कुल कुल आई मिला के थिंक सिद्धांत से है वी कि गिग हैव इकोनॉमी से एडवांटेज ज्यादा है। मतलब इससे हाँ, जो भी दिक्कत है उसको मतलब एक प्रकार से रेक्टिफाई किया जा सकता है कुछ नियम ओके कानून जी। से। So let's now conclude one by one. आई थिंक I हमें think Shashwat, you can start concluding now. यस सर। सर, जैसा कि हमारा टॉपिक था, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सब लोग मिलजुल के बात किए गीग इकोनॉमी पे। तो हमने काफ़ी अच्छा हेल्दी डिस्कशन किया है कि इसमें ये हमने बात की कर लिया है कि गीग इकोनॉमिक हमारे लिए कहीं कहीं अच्छा है, किस जगह पे अच्छा है। जैसे यूथ के लिए हमारे अच्छा है गीग इकोनॉमी। और अगर स्टेबिलिटी की बात हो तो स्टेबिलिटी के लिए गिग इकोनॉमी अच्छा नहीं है। और स्किल्स की बात हो, जैसे कुछ कुछ स्किल्स इंडिया में चलाए जा रहे हैं, उसके लिए गिग इकोनॉमी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उससे हमको नई नई स्किल्स सीखने को मिल रही हैं। और हमारा यूथ थोड़ा डिपेंडेंट हो रहा है, कुछ अलग थिंकिंग सोच रहा है। ये फ़ायदे हैं। और जहाँ तक कि हमारे फ्रेंड्स ने बताया कि ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे ट्रांसमिशन सेक्टर में है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, स्टेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर का भी काफ़ी अच्छा रोल हो रहा है यहाँ पे। वो हेल्प कर रहे हैं हमारा गिग इकोनॉमी को देखते हुए, वो हेल्प कर रहे हैं। जहाँ उनको अच्छा लग रहा है, पैसा जहाँ ज़्यादा मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें को तो देखते हुए हम देखा गया है, फिर हम लोग उस पर पूरा कंक्लूजन किए हैं कि गिग इकोनॉमी इज़ बेस्ट फॉर यूथ है, एंड दिस इज़ अनस्टेबल फॉर अनस्टेबल जॉब, लाइक दैट सर। ओके। देखो, अब इसमें क्या है शाश्वत, आपने बीच में पार्टिसिपेट किया, इनपुट भी दिया, दैट इज गुड थिंग। आई मीन आप बात कर पाए, लेकिन आज ग्रुप छोटा है, तो यस। 8 लोगों के ग्रुप में भी अगर बोल पाओगे इतना तो ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने पॉइंट्स रखे, जैसे आपने अपना एग्जांपल भी दिया चेक वगैरह इंडिया का कि बच्चे करते हैं काम, दैट इज ऑल्सो गुड, यस। एग्जांपल्स ऑलवेज हेल्प। लेकिन यस। कंक्लूजन का एक फॉर्मेट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब टॉपिक दिया जाता है कोई, तो उस टॉपिक को लिख लेना चाहिए आपको, आप कॉपी, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में ही बोलना चाहिए। इज द गिग इकोनॉमी फ्यूचर ऑफ वर्क। तो आपको इस टॉपिक के आसपास रहना है। गुड गिग इकोनॉमी, गुड और बैड गिग इकोनॉमी फॉर यंगस्टर्स, वो नहीं।
टॉपिक था इज गिग इकोनॉमी द फ्यूचर ऑफ द वर्क। मतलब क्या फ्यूचर में ये गिग इकोनॉमी वर्क का फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ वर्क है? तो उसका आपको बैलेंस ओपिनियन लेना है। यस जो भी सर। बाकी लोगों ने भी ओपिनियन दिया उसका बैलेंस ओपिनियन लेना है कि वी बिलीव दैट गिग इकोनॉमी लाइक हाइब्रिड मोड जैसे चल रहा है आजकल, एजुकेशन का भी हाइब्रिड मोड चल रहा है। अभी हम ऑनलाइन एजुकेशन इस टाइम पे इम्पार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन में कर रहे हैं हम लोग एजुकेट। तो वो हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन चल रहा है। वैसे ही जॉब्स ऐसी हो जाएंगी जो आपका हाइब्रिड मोड में चलेंगी। ऐसे मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो गिग वर्कर हैं, साइमल्टेनियसली अलोंग विद फुल टाइम वर्कर, दे आर गिग वर्कर ऑल्सो। और आप में से किसी ने एग्जांपल दिया कि अब्रॉड में भी यही होता है कि आप टाइम जितना होता है 2-4 घंटे आप वो एज अ गिग वर्कर काम करते हो और पैसा कमाते हो, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पैसा देता है। और मेहनत से जी नहीं सर। डरना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं कि सब मेहनत नहीं की, क्योंकि मेहनत करके आपको रिसोर्स जनरेट करने हैं, एफर्ट शुड बी पुट। हाँ, वो हेल्थ ना खराब करे, आपका मेंटल वो पीस वो ना खराब करे, लेकिन मेहनत से कभी किसी का हेल्थ खराब नहीं होती। अगर कोई मेहनत जी कर रहा है तो उससे ना तो मेंटली डिप्रेस होता है। ये सारे लोग जानते हैं डिप्रेस वही आदमी होता है जो काम नहीं करता। जो काम करने वाला आदमी ये बहुत काम करता है और उसको एंजॉय करता है, तो 24 घंटे भी काम करेगा, उसको ना तो हेल्थ प्रॉब्लम आएगी फिजिकल, ना मेंटल आएगी। सर ये तभी कंक्लूजन आती में है जब आप काम करते हैं तो। सर कंक्लूजन में सर यही ना बोलना है, जैसे जो पूरा डिस्कशन हुआ उसका सर उसी को हाँ, तो बताना है कि किसने क्या क्या बोला ऐसे। लेकिन टॉपिक तो बोलना ही चाहिए ना कि द टॉपिक गिवन फॉर द डिस्कशन वाज दिस। टॉपिक चेंज नहीं ना कर सकते आप। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कम से कम टॉपिक के बारे में तो कंक्लूजन किया जाए। अगर मतलब आप ओवरव्यू टॉपिक ही चेंज, टॉपिक का रखना पड़ेगा पहले स्टार्टिंग में। टॉपिक तो अपने ध्यान में रखो तभी तुम उसके आसपास बोल पाओगे, अदरवाइज डेविएट हो जाओ। और बीच में तुम बहुत बार डेविएट हुए हो सब लोग, तो वो टॉपिक से डेविएट नहीं होना है, उसको लिखना है टॉपिक। और थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दी जाए तो डिस्कशन बिल्कुल अलग हो जाता है। सो यस सर। तो वो हमें अलोंग अलोंग भी देखना पड़ेगा। अगर मैं टॉपिक चेंज करूँ, इज द गिग इकोनॉमी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, वो अलग टॉपिक, उसमें अलग इनपुट आना चाहिए। इज गिग इकोनॉमी द फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया, वो अलग टॉपिक है। गिग इकोनॉमी गुड और बैड, वो अलग टॉपिक है। तो टॉपिक एक ही टॉपिक पे, एक ही इसके अलग अलग पार्ट बन वो सकते हैं। लास्ट तक रुकता नहीं है सर, वो लास्ट तक मतलब बोलता जाता है, मतलब ऐसा हो गया था तो मतलब। सर, मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन आ करना रहा हूँ आ है? रहा हूँ, शशांक रुक जाओ रुक जाओ, आ रहा हूँ। ओके तो सर, थैंक अभी यू, क्या सॉरी है, सर। तुम्हें अकॉर्डिंगली वो लिख लिया जाएगा, तब नहीं तुम्हें डेविएट नहीं ओके होगा सर। तुम्हें यस लिखने की रिक्वायरमेंट, राइट? यस सर। ओके संदीप, आप कंक्लूड करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड। जैसा कि आज का जो टॉपिक था गिग इकोनॉमी हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब, गिग इकोनॉमी फ्यूचर वर्क। तो मेरे हिसाब से गिग इकोनॉमी जो है आगे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा उत्पादकता बढ़ाने वाला, इकोनॉमी को बढ़ाने वाला, और हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी एक अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत बनाने के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट, एक कल्चर है जिसके लिए जिसके लिए सभी लोग मेरे हिसाब से कोशिश करेंगे इन फ्यूचर में भी कि एक अपने रेगुलर जॉब के साथ में पार्ट टाइम जॉब करें। तो सभी ने अपना अपना ओपिनियन दिया इस पर। शशांक ने भी काफ़ी अच्छी बात रखी कि जैसे ही हमारा प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का मार्केट ओपन हुआ है, तो इससे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी की जो उत्पादकता है और उसका जो रेट है कंज्यूमर एंड पे उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि बिजली की जो उपलब्धता है वो भी अच्छी मिलने लगी है और उसका रेट भी जस्टिफाई है अभी। तो सभी के लिए इसका जो प्राइवेट प्लेयर के आने से इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं लास्ट दी एंड ऑफ पब्लिक को मिला है। एक अच्छा पॉइंट डिस्कस किया है हमारे जो शाश्वत, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इसका रिव्यू दिया है कि ओवरऑल जो हमारा देश की जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होगा, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी इससे घटेगा, और देश के लिए स्किल डेवलप डेवलप होगी, जो कि देश के लिए बहुत जरूरी है। और इस ओके संदीप, आपको देखो कंक्लूजन उतना लंबा नहीं बोलते, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना कंक्लूजन का। जी जी और आपको क्रक्स जो है मेन मेन पॉइंट्स बोलने हैं। जी दूसरा आपका ये कि आप स्लो बोलते हैं, तो अगर कहीं अग्रेसिव डिस्कशन हुआ तो आपको लोग बोलने नहीं देंगे। जी जी थोड़ा सा आप फास्ट बोलने की ट्राई करें, मतलब अपना पॉइंट जल्दी से रखने की ट्राई करें। जिस जी जी पेस पे आप बोलते हैं उसमें वो काट देगा, कोई आपको आपका पॉइंट ही पूरा नहीं बोलने देगा। तो जी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पॉइंट्स बहुत अच्छे हो लेकिन किसी ने आपको बोलने नहीं दिया। जी जी इसलिए आप थोड़ा ये प्रैक्टिस करो कि जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं, जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं आपके पास, तो जल्दी उनको जल्दी बोलेंगे। से बोल दिया जाए।
और जी कंक्लूजन भी ऐसे किया जाए कि चार पांच पांच सात पॉइंट अच्छे से रखे जाएं और जल्दी से उनको कंक्लूड किया जाए, तो बहुत टाइम आपके पास कंक्लूजन का नहीं होता, राइट? जी। ये है। ओके शशांक, आप कंक्लूड करें। हेलो। जैसे कि हमें आज टॉपिक दिया गया था, इज गिग इकोनॉमी द फ्यूचर ऑफ वर्क और नॉट। तो मैं यह बोलना चाहूंगा कि गिग इकोनॉमी किसी भी देश की तरक्की के लिए, किसी भी देश और इवन वर्ल्ड की तरक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज गिग इकोनॉमी इस तरह एक तरह की इकोनॉमी है जिसमें हम सिर्फ स्किल्ड वर्कर को इंक्लूड नहीं करते, इसमें हम लोग स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार के यूथ को कवर कर लेते हैं। क्योंकि गिग इकोनॉमी में हमें को बहुत ही ज़्यादा टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, होती है टैलेंट की आवश्यकता, लेकिन इसमें कई सारी जॉब ऐसी भी आती हैं जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर, दोनों तरह के वर्कर्स, दोनों तरह के एम्प्लॉयज कवर हो जाते हैं। और जैसा कि हम ही जानते हैं कि ये तरह की पार्ट टाइम जॉब है, इसलिए इसको एक स्टूडेंट भी कर सकता है, एक एम्प्लॉय भी कर सकता है, एक रिटायर्ड पर्सन भी कर सकता है। तो हमारे पास स्टूडेंट भी आ गए, हमारे पास जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो भी आ गए, हमारे पास जो रिटायर्ड पर्सन वो भी आ गए। तो तीनों तरह के जो पर्सन है, तीनों तरह के सिटीजन है, तीनों तरह के जो हमारे देश के नागरिक है, तीनों कवर्ड हो गए। और वो इस तरह की इकोनॉमी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज थे, इसमें हमें किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलता, किसी तरह का हमें मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलता। तो इसमें कुछ जो है सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि कुछ थोड़ा सा कुछ सेफ्टी इश्यूज जो हमें ये सब दिख रहे हैं उसको सॉल्व किया जा सके। दैट्स इट। ये शशांक, देखो जो कंक्लूजन है ना, वो कंक्लूजन लगना चाहिए, उसमें आपके अपने पॉइंट्स नहीं होते हैं, कंक्लूजन में ग्रुप के पॉइंट्स होते हैं। आपको कंक्लूजन जब देना है तो आपको ये बोलना है कि वी हैड अ डिस्कशन एंड वी वर ऑफ द ओपिनियन, एंड देन बोलते जाना है कि सम मेंबर सेड दिस, सम मेंबर सेड दिस। तो आप अगर कंक्लूजन को डिस्कशन की तरह लेंगे और अपने पॉइंट्स देना स्टार्ट कर देंगे तो कंक्लूजन नहीं लगेगा वो। तो कंक्लूजन में आपको बाकी लोगों के पॉइंट्स देने होते हैं, जैसे संदीप ने दिए, तो बाकी लोग क्या उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया डिस्कशन में, वो आपको बोलना होता है। नंबर टू, आप जब डिस्कशन करें तो आपको अलग नए पॉइंट्स के साथ एंटर करना है, बीच में आपको टोका भी शाश्वत नहीं कि ये हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, आप रिपीट ना करें। तो कभी भी पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना, अदरवाइज नंबर कटते हैं तुम्हारे। और आप टॉपिक के आसपास रहें और जो आपको ठीक पॉइंट लगता है वो आप बोलें। चार पांच बार आप एंटर कर सकते हैं। तो अभी आपको कंटेंट में इम्प्रूवमेंट, मतलब जो बोलना है उसका नए नया पॉइंट सोच के लाना है। एग्जाम्पल दो, जो डिस्कशन है उसमें एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो की जाती है उसका भी एक फॉर्मेट होता है, उसको फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन की जाती है। आपने इंट्रोडक्शन किया लेकिन आपको फॉर्मेट फॉलो करना है कि फ्रेंड्स माय नेम इज दिस एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी एंड द टॉपिक गिवन फॉर द डिस्कशन टुडे इज दिस। और मेरे ओपिनियन में ये टॉपिक रेलिवेंट टॉपिक है, बिकॉज आज की डेट में लोग जो है गिग इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। मेरे को लगता है हमें इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए कि गिग इकोनॉमी पहले तो होती क्या है, ये डिस्कस करना चाहिए। फिर गिग इकोनॉमी की नीड क्या है, फिर गिग इकोनॉमी के बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और क्या ये फ्यूचर में वर्क का फॉर्म, इस वे में हमें डिस्कस करना चाहिए। तो आपको इंट्रोडक्शन को में क्लासिफिकेशन देना होता है, इंट्रोडक्शन में डायरेक्शन देनी होती है, जिस डायरेक्शन में तुम डिस्कशन को चाहते हो। तो अगर जी। आपने इंट्रोडक्शन का अपॉर्चुनिटी लिया था तो आपको उसको बेस्ट यूज करना चाहिए था। और बीच में चार पांच बार आप एंटर करें, तो इस तरीके से आप वर्कआउट करो, स्ट्रक्चर पकड़ो, और स्ट्रक्चर को पकड़ के फिर आगे चलते रहो, तो पास हो जाते, को ट्रबल नहीं आता। ओके आकांक्षा, वुड यू लाइक टू कंक्लूड? अनम्यूट करो। Discussion, some of the highlighted points were gig economy is very beneficial for students who are looking for part-time jobs to sustain ourselves. Uh, the role of private players, the role of organizations, how are they are getting benefit, as well as the individual who is getting benefit, and economic and how the economy of the country is improving. A few of our friends gave examples like Czech and the electricity board. And thank you again for your valuable input. Uh, ओके our conclusion are we conclude that gig economy is the future of work. ओके आकांक्षा, थोड़ा आप पार्टिसिपेट करने की ट्राई करना, आप कम बोल रही थी बीच में।
तो आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको बोलना है, वो प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप एंटर करने की ट्राई करेंगी, तो शुरू में बोलने में इशू होगा, लेकिन बाद में आप कंफर्टेबली एंटर कर पाएंगी, बोल पाएंगी। और अगर आप कम बोलती हैं तो आपको कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास। फिर आपके पास दो चार पॉइंट्स हों, लेकिन वो अच्छे पॉइंट्स हों, तो पास हो जाता है आदमी। तो जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट्स कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोल पाते हैं, वो इतना अच्छा पॉइंट ऐड कर देते हैं कि उनका बेसिकली जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट अच्छे पॉइंट्स हैं, उनके बेस पे ही वो पास हो जाते हैं। तो आप कंटेंट के ऊपर फोकस करें सो दैट आप बोल पाए, राइट। सर वहां यस पर तो सर एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ। वहां पर तो सर कंक्लूड सिर्फ एक ही लोग करेंगे ना? हाँ, वहाँ पे एक ही करता है। तो सर हमको जो मार्क्स मिलेंगे वो हमने बीच में डिस्कशन किया गया है उसके बेसिस पर करेंगे ना? कंक्लूजन का भी मार्क्स मिलता है जो कर पाता है, और इंट्रोडक्शन का भी मिलता है। जो करता है कंक्लूजन, उसको मार्क्स मिलता है। इंट्रोडक्शन करो, कंक्लूजन करो, ट्राई करो इनिशिएटिव लेने का। पर दोनों करने की ट्राई मत करना, या तो कंक्लूड कर दो या इंट्रोडक्शन करो। अच्छा अच्छा। राइट, ओके। ओके आयुष, वुड यू लाइक टू कंक्लूड? यस the today's discussion of the today's topic for the discussion is the gig economy is the future of India, and we have a very conclusive discussion. We have concluded that yes, gig economy is the future of India. Many advantages are being highlighted by our team members. For example, Shashwat giving the examples of electricity sector, that is how the gig economy in the electricity sector helping the consumer to getting the best price, and also Sandeep has highlighted the as the gig economy helps in the reducing the unemployment and reducing the burden on the government to generate employment. Also, as there is a two sides of the coin. There is a flip side of the coin also exists, that highlighted by the Akanksha, that is it affects the individual work-life balance, and also the it lacks the economy lacks the proper safety of the employee in the future. So I believe there are some of the shortcomings are there in the EB economy, but in a whole it is a very progressive one, and the future of our India. ओके, सो इट्स ओके आयुष, आपका कंक्लूजन वाज ओके। लेकिन बीच में थोड़ा पार्टिसिपेट करो। आप एक तो लेट आए थे शायद, तो बीच में आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको एंटर करने की ट्राई करनी है ज्यादा, और थोड़ा सर मेरा ज्यादा बोलने इंटरनेट की। कनेक्शन थोड़ा दिक्कत हुआ था। हम्म, तो थोड़ा ज्यादा एंटर करेंगे नेक्स्ट टाइम, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होगा तो ज्यादा एंटर करेंगे, ज्यादा डिस्कशन करेंगे। बाकी कंक्लूजन आपने अच्छा किया है, दैट इज द काइंड ऑफ इनपुट विच इज रिक्वायर्ड, वो ठीक है। बाकी थोड़ा ज्यादा पार्टिसिपेट करना, द रेस्ट इज ओके। बाकी फ्रेंड्स, जितना भी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी, जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, वो प्रैक्टिस से दूर होती हैं। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, उतना ही तुम अच्छा इंप्रूव कर पाओगे। और कैंडिडेट्स को, बाकियों को ऑब्जर्व करो, बाकियों को देखो। जो मैंने वीडियो भी शेयर किया है, कल का भी शेयर किया है वीडियो, देखो जरा कैसे बाकी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे बोलते हैं, वो आपके कंपटीटर हैं कहीं ना कहीं। तो आपको उनसे अच्छा परफॉर्म करना है, तो यू हैव द रेफरेंस कि मेरे को इनसे अच्छा परफॉर्म करना है। वो करोगे तो हो जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। ठीक है, फिर देन आई थिंक यू प्रैक्टिस इट, एंड डेली मेरे ख्याल से एक दो जीडी चलते हैं, दिन को भी चलता है शुभ्र मैम का, और रात को ये एक स्लॉट होता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए जीडी का, सो सर दैट यू परफॉर्म। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। मान लीजिए जीडी में कोई ऐसा टॉपिक दिया गया जो हमको उसकी नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे उसको? एक वीडियो है मेरा, हाउ टू स्टार्ट जीडी, उसको सुनो। एंटर करो हाउ टू स्टार्ट जीडी, यूट्यूब पे जाओ, उसमें लिखो हाउ जी। टू स्टार्ट जीडी, उसमें ये